Good morning, girls. Can you hear me? Good Yes, morning, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. All right. So, can everybody see the presentation? Yes, ma'am. All right. So, let's start. Today, Yes. we'll study the functions of an entrepreneur. Okay. What are the roles that an entrepreneur is supposed to perform? What are the functions? Okay. Significance, functions, roles, all these points are the same. Okay. So in case any of these things are asked in the exam, so you have to mention these points. First is dealing with uncertainty. Okay. Everybody, I would like to remind you that you should write your name, your full name, just your full name, nothing else, in the chat box for attendance. All right. So first point is dealing with uncertainty. Now, uncertainty, we have already discussed what is uncertainty. Uncertainty is a situation where the outcome or the result is unclear or okay. So the net got disconnected for some time. I don't know what happened. Okay, so dealing with uncertainty, we were discussing. Uncertainty is a situation where the outcome or the result of a or the consequences of a situation are not clear. Okay, dealing with uncertainty. So an entrepreneur deals with any kind of uncertain situation, any kind of such situation which is not whose result is not clear. We are not able to judge what would be the outcome of that situation or that consequence, that opportunity. Okay, so an entrepreneur deals with such situations and overcomes them with a profitable venture. Okay, in the first class only we had seen that. Don't know what is happening. Girls, can you hear me? Hello, girls, can you hear me?
आवाज आ Yes, रही ma'am. है आप लोगों को? Okay, so dealing with uncertainty is one of the functions that an entrepreneur performs, and by bearing the risk of an uncertain situation, the entrepreneur overcomes such a situation by taking rational decisions and changing under changing market conditions. Okay, the मैम market, yes, मैम yes, yes, yes. मैम क्लास किसकी चल रही है, हिंदी मीडियम वालों की कि इंग्लिश मीडियम वालों की? इंग्लिश मीडियम की चल रही है। मैंने मैसेज में स्पेसिफिकली लिखा भी था कि इंग्लिश मीडियम की क्लास है। अच्छा, बीकॉम प्लेन के ग्रुप में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी एडेड हैं क्या? बिकॉज ग्रुप का नाम ही इंग्लिश, बीकॉम फर्स्ट ईयर प्लेन इंग्लिश मीडियम है, तो उसमें हिंदी मीडियम भी एडेड है। हेलो, बस आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है? आई एम नॉट श्योर कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही, क्योंकि नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो मैं ये पूछ रही थी कि आपके ग्रुप में फर्स्ट ईयर प्लेन इंग्लिश ग्रुप में क्या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी एडेड हैं? किसी को पता नहीं है? यस मैम। All right. So dealing with uncertainty में the entrepreneur makes rational decisions. Rational मतलब कि जिसको हम किसी रीजन से बैक कर सकें, जिसके लिए अगर मैंने कोई डिसीजन लिया है तो मैं उसके लिए जस्टिफिकेशन दे सकूं कि व्हाई हैव आई टेकन दिस डिसीजन। ओके, तो रैशनल डिसीजन लेते हैं इन अनसर्टेन सिचुएशंस। अब अनसर्टेन क्यों होता है? बिकॉज द market conditions, the business environment keeps on changing. It is always dynamic. It keeps on changing. The political structure changes, the legal system changes, the needs and preferences of the customers change. Okay, so because of all these changes, the market condition becomes uncertain. Okay, so the entrepreneur is supposed to take rational decisions and deal with uncertain situations. Okay. Second point पे आते हैं, innovation. Now, innovation we have already discussed that it is a process of changing, experimenting, transforming, and revolutionizing the business. Okay, so these are the steps that are involved in the these are the steps that are involved in innovation. Okay, so innovation में क्या क्या चीजें रहती हैं? The process of changing, experimenting means trying new things, transforming means changing something that already existed or altering something that already was existing in the market, and revolutionizing means bringing about a revolution, bringing about a new sort of uh, change
wave of change. Okay, so all these things are done in order to innovate. Then providing unique ideas is also one of the functions of an entrepreneur. So providing unique ideas is what innovation is. तो innovation के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि innovation सिर्फ एक नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना नहीं होता, बट उसमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ नए चेंजेस लाना या किसी नए मार्केट में पुराने प्रोडक्ट को सेल करना या पुराने प्रोडक्ट को ही नए तरह से सेल करना, ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ इनोवेशन. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आते हैं जॉब क्रिएशन. सो बाय क्रिएटिंग एंटरप्राइजेस, बाय क्रिएटिंग मोर एंड मोर बिजनेसेस, जॉब्स आर क्रिएटेड. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड क्रिएट कैपिटल एंड रिसोर्सेज. ओके, कैपिटल एंड रिसोर्सेज मतलब व्हाट इज कैपिटल? आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कैपिटल क्या होता है. कोई बता सकता है? Nobody can tell me कि कैपिटल क्या होता है. यू आर इन क्लास फर्स्ट ईयर, आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट कैपिटल मीन्स. मैम कैपिटल वो होती है जो अपन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो लगाते हैं. Very good. So the money that is invested to start a business is called capital. जो पैसा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या रन करने के लिए लगाया जाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं. ओके, नाउ एंटरप्रेन्योर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में और उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं और उस प्रॉफिट को फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट करके वो अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से कैपिटल भी ग्रो होता है. ठीक है, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा उसमें प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम री इन्वेस्ट करते हैं इनटू द बिजनेस. सो इट हेल्प्स इन ग्रोइंग द कैपिटल या कैपिटल फॉर्मेशन. ऑलराइट, नेक्स्ट हम आते हैं नंबर ऑफ न्यू स्टार्टअप्स पे. सो एवरी एंटरप्रेन्योर जब एक एंटरप्राइज स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं या स्टार्ट करते हैं या एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो he or she is supposed to identify the existing opportunities. ठीक है, क्या क्या चांसेस अवेलेबल हैं एंटरप्रेन्योर बनने के हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में या एग्जिस्टिंग मार्केट में, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं. उनके ऊपर रिसर्च, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारी चीज़ें अप्लाई करके एंड देन वी स्टार्ट अ न्यू venture. Okay, so number of new startups depend on the identification of opportunities that are existing in the market or the business environment. Okay, so functions of entrepreneur is to start many new businesses or launch new startups. Startups matlab startups is any new business is called a startup. Then next point है managing रिसोर्सेज. मैनेजिंग रिसोर्सेज के बारे में अगर हम बात करें तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है. रिसोर्सेज आर एनी एलिमेंट्स और फैक्टर्स दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और रनिंग द बिजनेस. ओके, but the main problem with these resources is that resources are limited, right? Everybody would have heard this, that resources are limited, right? Agree? Kuch yes, no, I'm not able to hear anything. Is everybody attentive Yes, in ma'am. class? Good. At least somebody should say yes so that I know that there are people who are listening. Okay, then so resources are always limited and we need to make sure कि जो रिसोर्सेज मैंने इन्वेस्ट किए हैं अपने बिजनेस में वो पूरी तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो उन रिसोर्सेज का. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब, कैन एनीवन टेल मी?
What does optimum utilization mean? अच्छा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किसी को पता मैम हो? उसको सही बोलो। मैम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब उसका जो जो भी अपने पास मटेरियल है हाँ, उसको बिना वेस्ट किए उससे अच्छे से उसको यूटिलाइज करना हर जगह पे। ओके। तो अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है तो फिर उसका मतलब क्या हुआ? यस मैम। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मीनिंग ये है तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? कुछ डिफरेंस बता सकते हैं ऑप्टिमम मैक्सिमम में? चलिए कोई बात नहीं। ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम both refer to maximum utilization, but the only difference between them is that optimum utilization means कि मैंने अगर optimum utilization किया है इसका मतलब रिसोर्स को ऐसी जगह और इस तरह से इन्वेस्ट किया है कि मुझे उससे मैक्सिमम रिटर्न भी मिले। ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि मैंने जितना ज्यादा हो सकता है उस रिसोर्स को यूज किया, कोई भी वेस्टेज नहीं होने दिया। बट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन फोकसेस ऑन मैक्सिमम यूसेज प्लस मैक्सिमम रिटर्न्स। ओके, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया सबको? यस मैम। गुड। तो हम हमेशा एज एन एंटरप्रेन्योर वी ऑलवेज फोकस ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, हम हमेशा अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। नाउ देन वी कम टू रीडायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जिस जगह पर कम रिटर्न्स आ रही हैं वहां से रिसोर्सेज को कट करके ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, री इन्वेस्ट करें जहां पर रिटर्न्स ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कई कंपनीज के कुछ प्रोडक्ट्स बहुत फेमस होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स उतने सक्सेसफुल नहीं होते। जैसे मैगी का हमने एग्जांपल पहले भी लिया था। तो मैगी में जो 2 मिनट इंस्टेंट नूडल्स हैं वो बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट है मैगी का। मैगी इज द नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है, 2 मिनट इंस्टेंट नूडल्स इज वेरी सक्सेसफुल, बट मैगी सूप्स आर नॉट एज सक्सेसफुल और एज प्रॉफिट अर्निंग एज मैगी इंस्टेंट नूडल्स। ठीक है, तो the company invests more amount of resources in production of 2 minute instant noodles than in the production of मैगी सूप्स। ठीक है, ज्यादा रिसोर्सेज किस में इन्वेस्ट करते हैं? मैगी इंस्टेंट नूडल्स में। और मैगी सूप्स भी प्रोड्यूस करते हैं बट द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट आर इन्वेस्टेड वो कम होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कैपिटल फॉर्मेशन। ना कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स contributes the entrepreneur contributes large businesses and industries to the society. These businessmen are with realistic basis to analyze, identify and exploit opportunities. So every entrepreneur starts up a business। और बिजनेस स्टार्ट करने से बेनिफिट क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा मनी जनरेट होता है इकोनॉमी में। ओके, इंडस्ट्रीज बड़ी बनती हैं, सक्सेसफुल होती हैं, ग्लोबल ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं या हम बोल सकते हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं हमारी कंट्री के, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जो मनी अवेलेबल है, जो कैपिटल अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, आप लोगों ने मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट वगैरह पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। वो मनी मल्टीप्लायर फंक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जितने ज्यादा बिजनेसेस सेटअप होंगे उतना ही ज्यादा मनी जनरेट होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। सो ऑब्वियसली एन एंटरप्रेन्योर helps in economic growth। क्यों? क्योंकि based on all the points that we have studied up till now, वो सारी चीजें
इकोनॉमी के बेनिफिट में हेल्प करनी है, इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करा रही हैं, ठीक है। मैनेजिंग रिसोर्सेज, जितना ज़्यादा हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे उतना ज़्यादा हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। कैपिटल जितना ज़्यादा फॉर्म होगा कंट्री में, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प होगी, ठीक है। जितने ज़्यादा बिजनेसेस स्टार्टअप्स सेटअप होंगे, दैट विल ऑल्सो हेल्प द कंट्री टू ग्रो। जॉब क्रिएशन, इनोवेशन, अनसर्टेनिटी, ये सारी चीज़ें हेल्प कर रही हैं हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में या डेवलप करने में। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं। सो इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोसेस ऑफ इंक्रीमेंटल वेल्थ क्रिएशन एंड सेंस अपॉर्चुनिटीज वेयर अदर्स सी chaos एंड कंफ्यूजन। तो एंटरप्रेन्योर का एम क्या होता है, या एंटरप्रेन्योर का फंक्शन ये होता है कि जब जिस जगह पर दूसरे लोगों को कंफ्यूजन लगे या प्रॉब्लम दिखाई दे, उस जगह पर एंटरप्रेन्योर को सोल्यूशन ढूंढने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं एक प्रॉफिट मेकिंग तरीके से, ये कैपेसिटी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होती है। दैट इज हाउ ही और शी हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी is the ability to produce more goods and services with less inputs, okay, and also focus on cost and efficiency. प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना भी फंक्शन होता है एक एंटरप्रेन्योर का। जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जितना ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे विथ लेसर नंबर ऑफ रिसोर्सेज और इनपुट्स, उतना ही कैपेसिटी या हमारी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। कम से कम कॉस्ट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, ये टारगेट होता है। आप लोगों ने ये बिजनेस एनवायरनमेंट या बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन होना चाहिए, राइट। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे होगी, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा जितने कम कॉस्ट में। एंड an entrepreneur finds or looks for innovative ways to produce more using lesser resources. यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम। कोई भी पॉइंट ऐसा है जिसमें डाउट हो, कोई ऐसा पॉइंट हो तो बताइए। नहीं, सबको क्लियर है तो आगे बढ़े। यस मैम। ओके, चलो। क्रिएटिंग टुमारो तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये पॉइंट, ठीक है। क्रिएटिंग टुमारो इज बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर द कंट्री, ओके। अगर आज मैं मोस्ट इफेक्टिवली या एफिशिएंटली काम करूं तो कल मेरी कंट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, या हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बेटर सर्विसेज होंगी, बेटर प्रोडक्ट्स होंगे, ओके। एंड ग्लोबल फ्रंट पे या पूरे वर्ल्ड में कंट्री का ज़्यादा रेपुटेशन होगा। So creating tomorrow means making valuable changes to things that existed yesterday. जो कल था उसे आज मैं alter करूं और better shape दूं. Next is social and ethical awakening. Now every entrepreneur has to be aware of the social uh, aspect of entrepreneurship as well, ठीक है। हर एंटरप्रेन्योर को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी बहुत ज़रूरी है। हेल्प द नीडी एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड नॉट बी मनी माइंडेड, ठीक है। हर एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन से इसी तरह डिफरेंशिएट होता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी केटर करनी है। जैसे कई सारी तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, जैसे मान लो कि मैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करूं, सेम प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है बट मैं उसे डिफरेंट तरीका से प्रोड्यूस करूं जो कि इको फ्रेंडली हो, या ऐसी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करूं जिससे मिनिमम पोल्यूशन हो, या ऐसी सोसाइटी हमारी सोसाइटी में ऐसे प्राइस पर कोई प्रोडक्ट
अवेलेबल करवाऊं जिसमें ऐसे प्राइस पर प्रोडक्ट अवेलेबल करवाऊं जिसमें मैक्सिमम क्लासेस हमारी कंट्री के जितने भी मैक्सिमम क्लासेस हैं, जैसे लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, सारे ही क्लासेस ऑफ पीपल उस चीज को यूज कर सकें या उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। ठीक है। Then also should take ethics into consideration while taking decisions. अब ethics क्या होते हैं? Ethics are values और beliefs जो एक person के अंदर होते हैं, which make us related or conscious of the society that we are living in. ठीक है। जैसे हमारी कंट्री में a lot of people do not eat non-veg products। ठीक है। तो हर एक कंपनी जो यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करती है, उन्हें इस चीज को माइंड में रखना होगा कि a lot of people in India are vegetarians and they should keep maintain that hygiene or maintain that kind of system जिससे वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस में इंटरेक्शन ना हो पाए, फूड में इंटरेक्शन ना हो पाए। ओके। सो social and ethical awakening is also very important। जब मैकडोनल्ड्स एंड KFC ने अपने आउटलेट्स इंडिया में स्टैब्लिश किए, दे हैड टू टेक ऑल दी सोशल एंड एथिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडिया इनटू कंसिडरेशन। उन्हें ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा कि किसी भी प्रोडक्ट को हम यहाँ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इन अदर कंट्रीज अ लॉट ऑफ थिंग्स, a lot of variety of non-veg products are eaten, okay, but in India not everybody consumes non-veg um, eatables, so they had to create their strategy or they had to alter their products according to the Indian culture and society। okay, so हर entrepreneur को इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। Then, last point is managing in a global environment. Now, in today's time, after globalization, every country is now free to sell their products in all over the world. Okay, we cannot stop other countries from selling their products in our country. That is the reason why Chinese products are sold so freely in India. Okay, government cannot deny China to sell their products in India because of globalization, but they can convince their own citizens to avoid purchasing Chinese products because they are cheaper, they are easier to get, but they are trying to kill the market of our Indian प्रोडक्ट्स। ओके, तो आप में से किसी ने ये कॉन्सेप्ट सुना है जो अभी रिसेंटली आया है, वोकल फॉर लोकल? Has anybody heard of this phrase? Yes, ma'am. Vocal for local क्या होता है, बता Ma'am, to सकते हैं? support local businesses of our country, Yes, very good. small businesses. Yes. So Shrishti, right? Yes, ma'am. So Shrishti has rightly pointed out that vocal for local is a concept that has been brought about by the Indian government, which helps the local artisans, the local producers to uh, push their products into the market, to motivate Indian consumers to buy local products or local or Indian products, not products from China or from other countries. Okay, because it helps the Indian producers to survive in the market. Now, when we talk about global environment, every entrepreneur has to survive in this global environment. They should be aware of what are the changes that are happening in the entire world, not just their own country. Okay, and based on the world situation or the world industry, they have to alter or increase their efficiency of their organization। Is that clear to everyone? अब बताइए कि इनमें से कोई पॉइंट क्या ऐसा है जो आप में से किसी को समझ में नहीं आया हो?
You can ask now. मैम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज एक बार बता, वो मिनिमाइज वाला बता दीजिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड मिनिमाइज वाला। अच्छा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है ना। तो मैक्सिमम और ऑप्टिमम दोनों ही सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं। जब हम रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन की, मतलब रिसोर्सेज को यूज करने की बात कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम यूज करना है, मैक्सिमम यूसेज मतलब कि जितना हो सके उतना हमने उस रिसोर्स में से एक्सट्रैक्ट कर लिया। जैसे मान लो मुझे जूस निकालना है, ठीक है, एक ऑरेंज का, तो ऑरेंज को जितना हो सके उसमें से उसको स्क्वीज करके उसका जूस निकाल लिया हमने। बट जब मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात करती हूँ तो मैं किसी प्रोडक्ट के रिटर्न्स की भी आई फोकस ऑन द रिटर्न्स एज वेल। जैसे मान लो कि मैंने ऑरेंज को स्क्वीज करके विथ द पील, छिलके के साथ उसका जूस पूरी तरह से उसको जितना स्क्वीज कर सकते थे करके उसमें से जूस निकाल लिया, ठीक है। बट देयर यस। वाज अ प्रॉब्लम कि जो ऑरेंज का पील होता है दैट इज नॉट गुड इन टेस्ट, ठीक है, वो बिटर होता है, कड़वा होता है खाने में। यस मैम। अब जब मैं इस चीज पे फोकस करूंगी कि मुझे इस प्रोडक्ट को सेल भी करना है और सेल करने पे मैक्सिमम लोग मेरे प्रोडक्ट को पसंद करें और उससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो, है ना, रिटर्न जो मिले। प्रॉफिट मतलब जब मैं उस जूस को सेल करूं तो मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा या मनी मिलेगा वो मेरे रिटर्न्स हो गए। यस मैम। मैक्सिमम रिटर्न्स तब मिलेंगे जब वो जूस अच्छा टेस्ट करेगा। अगर वो बिटर होगा तो क्या कोई परचेस करेगा? नो मैम। तो मुझे इस तरह से रिसोर्स को यूटिलाइज करना है कि मैं मैक्सिमम तो करूं पर रिटर्न्स भी मैक्सिमम आए। अगर मैं पील के साथ या छिलके के साथ ऑरेंज को जूस निकालती हूँ तो वो प्रोडक्ट मुझे रिटर्न्स नहीं देगा पर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन देगा। मैंने ऑरेंज को पूरी तरह से यूटिलाइज किया है बट रिटर्न्स कुछ नहीं यस मिलेंगे। मैम। अब समझ में आया? ओके मैम। और कोई पॉइंट, किसी को और कोई कंफ्यूजन है इन पॉइंट्स में, फंक्शंस में? चलो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स पढ़ने हैं अब हमें, ठीक है। व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स? तो टाइप्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है, मल्टीपल टाइप्स होते हैं, इसलिए इनको वेरियस बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है, ठीक। और हर बेसिस में कुछ टाइप्स को डाला गया है जो हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे, टाइप ऑफ बिजनेस के बेसिस पे, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, ओनरशिप, स्केल ऑफ ऑपरेशन, मोटिवेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एटीट्यूड ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये सारे टाइप्स हैं जिसमें हमने टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर को डिवाइड किया है। तो हम फर्स्ट टाइप आज पढ़ लेते हैं, फर्स्ट बेसिस पढ़ लेते हैं, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट चार टाइप के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। फर्स्ट है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर एज द नेम सजेस्ट किस तरह के होते हैं? ऐसे एंटरप्रेन्योर जो किसी चीज में इनोवेशन लाए, कोई इनोवेटिव कैपेबिलिटी पोजेस करते हो, ठीक है। दे इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी, मार्केट एक्सेट्रा। इनमें से कोई भी चीज नई अगर वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज हु एन इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर इज, ठीक है। इनोवेटिव समझ में आया? Almost every entrepreneur is an innovative entrepreneur. Okay, then next हम आते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर को। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर को हम अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं, ओके। अब इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है, इमिटेट करना मतलब किसी को कॉपी करना, ओके। सो
this type of entrepreneur does not innovate. Okay, he or she adopts successful innovation initiated by innovating entrepreneurs and are found in developing countries. तो इस तरह के entrepreneur क्या करते हैं, कोई innovation नहीं करते. इनोवेटिव entrepreneurs जो इनोवेशन करते हैं उसको ये लोग कॉपी करते हैं या अडॉप्ट कर लेते हैं. ठीक. अब नाउ यू विल आस्क कि अगर ये कोई इनोवेशन नहीं कर रहे हैं या दूसरे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ कॉपी कर रहे हैं तो फिर हम इनको एंटरप्रेन्योर क्यों बोल रहे हैं, बिजनेसमैन क्यों नहीं बोल रहे हैं, राइट? तो द रीजन इज कि दो ये इमिटेट करते हैं या उन एंटरप्रेन्योर्स को कॉपी करते हैं, बट दे ट्राई टू डू इट इन डिफरेंट सिचुएशंस. जैसे अगर कोई इनोवेशन यूएस में किया गया है, कोई नया प्रोडक्ट यूएस में इंट्रोड्यूस किया गया है या सेल किया जा रहा है, these type of entrepreneurs are found in developing countries. जो countries अभी डेवलप्ड नहीं हुई हैं, डेवलप होने की प्रोसेस में है, ऐसी कंट्रीज में इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर यूजुअली मिल जाते हैं क्योंकि वो सक्सेसफुल या डेवलप्ड कंट्री, जैसे यूएस इज अ डेवलप्ड कंट्री, उस कंट्री से हम ऐसे इंस्पिरेशंस लेते हैं या ऐसी प्रोडक्ट्स को कॉपी करते हैं जो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है पर उनकी कंट्री में अवेलेबल है. तो मैंने क्या किया, मैंने उनकी कंट्री से इनोवेशन को इमिटेट कर लिया या अडॉप्ट कर लिया और यहाँ पर सेल किया. तो इंडिया में तो वो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट हुआ. ठीक है, तो दैट इज व्हाट एन इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर इज. कि सबको समझ में आया दोनों में डिफरेंस? यस मैम. ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं Fabian. Now, what is a Fabian entrepreneur? Fabian entrepreneurs are lazy and shy, lack will to adopt new methods, do not experiment, and imitates only if success is certain, does not want risk. Now, Fabian entrepreneurs are the most unacceptable or most undesirable kind of entrepreneurs that are existing in the world. ठीक है, इस तरह के entrepreneurs किसी भी तरह की न्यू मेथड या इनोवेशन पे फोकस नहीं करते, ना तो वो इनोवेट करते हैं ना ही वो इनोवेशन को कॉपी करते हैं. वो तभी इस प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं या बिजनेस स्टार्ट करते हैं जब वो 100% श्योर हो कि बिजनेस सक्सेसफुल होगा या कोई प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा. तो ऑलरेडी जो प्रोडक्ट सक्सेसफुल है उसी पे वो इन्वेस्ट करते हैं. दे डू नॉट ट्राई टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस. ठीक है, जैसे इनोवेशन में भी इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर भी अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या कोई इनोवेशन करते हैं. इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स भी इनोवेशन को इमिटेट करते हैं या कॉपी करते हैं और नए कंट्रीज में प्रोड्यूस करते हैं. बट फैबियन एंटरप्रेन्योर्स डू नो सच थिंग. ना तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना ही नए मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं, बस जो प्रोडक्ट ऑलरेडी रिस्क फ्री है या सक्सेसफुल है बस उसे प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट, ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स. नाउ ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स follow traditional methods of production. Okay, they refuse to adopt new methods of production even on suffering losses. They struggle to survive, not to grow. Their operations are uneconomical, their products are unmarketable, and they are pushed out of the market. तो drone entrepreneurs वो entrepreneurs होते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड्स पे स्टक होते हैं. दे डू नॉट वांट टू इनोवेट. वो नए टेक्निक्स, नए मशीनरी या नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है. These are people who are orthodox. Okay, these are companies who follow orthodox pattern of production. किसी भी तरह से नए मेथड्स को अडॉप्ट करना नहीं चाहते. इवन उनके प्रोडक्ट्स अगर लॉसेस में जा रहे होते हैं तब भी वो अपने प्रोडक्ट को या अपने टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को इनोवेट नहीं करते या रेनोवेट नहीं करते. ठीक है, और जिसकी वजह से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर
them to survive in the market, और धीरे धीरे कुछ टाइम बाद उनको मार्केट से बाहर कर दिया जाता है, कोई भी उनके प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करता, बिकॉज जब तक आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप मार्केट के साथ चेंज नहीं होंगे विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, तब तक you will not have a successful connection with the customers. Okay, so we'll stop here and we'll continue in the next class. आप सबने अभी तक अटेंडेंस में नाम नहीं लिखा है. आई वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज राइट योर नेम्स इन द अटेंडेंस in the chat box, because of connection loss, the chat got deleted. Okay, so I want everybody to write their names again, just the name. Okay, don't write anything with it, just write your name. मैम Yes. मैम आप बुक और ऑथर के बारे में कुछ बता दीजिए इसके सब्जेक्ट की. फर्स्ट ईयर की बुक आपकी अलग से ही आती है, फर्स्ट ईयर साहित्य भवन पब्लिकेशन की. यस मैम. यूसी गुप्ता की बुक है, आई थिंक किसकी? एंटरप्रेन्योर यूसी गुप्ता. यूसी गुप्ता. हाँ, एंड नाम से ही आती है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर फर्स्ट ईयर. यस मैम. ठीक है ना, बट वो आप परचेज कर सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि आपको ज़रूरत पड़ेगी बुक खरीदने की, बिकॉज आई प्रोवाइड यू सफिशिएंट नोट्स, और आपका वैसे भी एफसी सब्जेक्ट है ना, फाउंडेशन कोर्स है, तो मुझे मतलब Yes, नीड ma'am. नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं. ठीक है, सबने नाम लिख दिया अपना? यस मैम. यस मैम. ऑल राइट. चलिए, थैंक यू गर्ल्स. Okay, we'll continue in the next class.